Good afternoon, student. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon, sir. sir. Good afternoon, sir. Okay, today I am going to discuss about the unit number 2, Laplace transform. Okay, of our course. So first I want to discuss elementary concept of the Laplace transform. That means introduction to Laplace transform. Then we go for the content of the unit. Okay. So is it visible to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, so this is our name of the course MA252 advanced. Oh, sorry. Our yes 251. Okay, your course is MA251. Sorry for that. And engineering mathematics 2. 3. Maths 3. Okay, this is the code of your course. Okay, and the title is same, Laplace transform. That is the unit number 2 in your course, and this is about the MA252, that is the advanced engineering mathematics, but your course name is MA251 engineering mathematics 3. Okay, everybody. Yes, sir. Okay. Now here you can see that I write down here the applications of the Laplace transform. So what are the applications of Laplace transform? So first application is solve vibrating spring problems with or without damping or external forces using standard method and Laplace transform method. So we can solve the vibrating spring problem by using the Laplace transform method. Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. We also finalize the solution of the electric circuits problem with the help of the Laplace transform. Okay, which is already solved by using the standard method, but we can also solve that system by using the Laplace transform. So this is the second application of the our unit. Then third application is we can solve many systems by using the Laplace transform. For example, deflection of the beam. Okay, and you can also say that if the system has the differential equation, then you can apply the Laplace transform to that and find out the solution for that. And you can solve that system by using the Laplace transform. Okay, everybody. Yes, sir. Okay. And last application is in electric network theory, and that is the wonderful application of the Laplace transform. But according to your branch, first application is related to mechanical engineering. Okay, means जो यहाँ पे list out किया है उसके अलावा भी बहुत सारी application है. There are many applications of the Laplace transform in your field, but I mention here only one. Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in this unit, we first start with the definition of the Laplace transform, then the linearity of the Laplace transform, then Laplace transform of elementary function, then inverse Laplace transform, then first shifting theorem, then we go for the differentiation and integration of transform, then the transform of derivatives and integrals, then we go for the unit step function, then second shifting theorem, then we go for the Dirac delta function, means Laplace transform of Dirac delta function, then the convolution theorem and the Laplace transform of convolution theorem, then we go for the partial fraction, and at the last of this unit we apply all above concept in one concept, that is the solution of the ordinary differential equation. So whatever we learn in this unit we will apply in solution of the ordinary differential equation. Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now we go for the name of our unit. What is the name of our unit? Laplace transform and its Laplace transform. yes, Laplace transform and its application. So Laplace transform, you can say Laplace transform and its application. Okay, that is the
title of this unit. So Laplace transform means Laplace is one of the famous mathematician. Transformation, what do you mean by transformation? Transform means transformation, and what do you mean by transformation? Anybody have any idea? Sir, converting a function into another function with respect to different derivative. डेरिवेटिव ऐसा है नहीं, आपका पार्शियली करेक्ट है ना, लेकिन जो डेरिवेटिव आपने ज्वाइन किया इट इज नॉट करेक्ट. ओके, सर मींस रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ऐसा. अभी सपोज इधर डी बाई डी टी लिया, फिर डी बाई डी एस मिलेगा. yes, okay, that means you want to say that dt और ds ऐसा कुछ. यस सर, मतलब फंक्शन का वो ट्रांसफॉर्म करेंगे. Yes, means transformation is one of the technique to transform one system to another system. Am I right or wrong? यस सर. If you have the Yes, difficult है ना system, then you can transfer that system into the simple system by using the transformation technique. Yes or no? yes sir. ओके, सो दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. और ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए लाप्लास ने एक मेथड दिया था, इसलिए दिस मेथड इज नोन एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अंडरस्टैंड? Yes sir. नाउ व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन? सो एप्लीकेशन मींस you can say that it will applicable in the ordinary differential equations. Okay, Yes, sir. okay, so here I mentioned that what do we mean by the transformation. So transformation means a process by which one figure comma expression or function is converted into another one of similar value. means उसका nature हम change नहीं कर सकते, but if you transfer one figure to another figure, then it is known as the transformation. Understand everybody? Student? Yes sir. Yes. Transformation means a process by which one figure or expression or function is converted into another one. बट ये कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होना चाहिए. अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, गिव मी द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. चलो हम रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे देखते हैं? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे यस सर, ये तो हम हर जगह पे देखते हैं. बताओ. Yes sir. ओके, देखो किसी को है पता तो आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी एग्जांपल देन यू कैन शेयर विथ अदर्स, अदरवाइज आई आल्सो वांट्स टू शेयर. एनीबॉडी? Sir, from young age to old age. वो तो बहुत कुछ चेंज नहीं हो जाता है. यंग The transformation होता है. ओके, आप बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आप जब बचपन में आपका चेहरा जैसे दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है ना? सर वो ट्रांसफॉर्मर पिक्चर है ना, हाँ. कार्स वाला, हाँ, वो मशीन में से कार बन जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्मर पिक्चर. ओके. तो अभी एडवर्टाइजमेंट पे भी नहीं देखते आप? जो कपड़े की एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या होता है, पहले कुछ दूसरा पहना होता है, फिर चेंज होके दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है. आता है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ओके, सिंपल एग्जांपल है. देखो आप जब भी सेल्फी लेते हो या फिर कोई भी फोटोग्राफी करते हो मोबाइल से, तो आपके पास वन पिक्चर है
है ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. उसको आप ब्यूटीफाई अप्लाई करके या फिर कुछ नया कुछ चेंज करके उसमें ब्लर इमेज करके फिर चेंज करते हो कि नहीं, अच्छा दिखाने के लिए? Yes, sir. सो दैट इज वन Photoshop. ट्रांसफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो प्रोसेस है, वो जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो, जो प्रोसेस कर रहे हो, इट इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट इट. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ना, उससे भी बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. क्या बोलते हैं? इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म सबसे बड़ा मींस जनरल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो उसको इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन से लाप्लास ने कुछ चेंज किया तो उसको हमने बोल दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ने व्हाट वी चेंज. ओके, और व्हाट लाप्लास चेंज. ओके. Yes, sir. Okay, so first integral transform. So integral transformation is a special operator or a function or a transformation which converts any function f of t, small f of t, okay, keep in your mind small f of t, which satisfies some special conditions into a new function. Means हम एक small f of t को कंडीशन अप्लाई करके कैपिटल एफ ऑफ एस में ट्रांसफर करेंगे, या फिर उसका दूसरा नेम है एफ बार एस विथ रूल. मींस कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे देखो टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का टी आप आई भी बोल सकते हो, कुछ बुक में ऐसे भी लिखा होता है आई ऑफ एफ ऑफ टी. ओके, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन. तो टी ऑफ एफ ऑफ टी या फिर आई ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 to t2 k of ts, means k is the function of t and s, f of t is the main function जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं. So you can say that this is your f of s. Then this equation, this integration is known as the integral transformation. Understand everybody? Yes, sir. Any doubt? किसी को डाउट है तो बोल सकता है, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नो डाउट. सर ये एक बार रूल वापस समझाओ ना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का. टी ऑफ एफ ऑफ टी वो फिर वो वाला. ओके, जिसे आपने देखा होगा कि गामा ऑफ हम एन बोलते थे ना, वो क्या था? कोई बताएगा मुझे गामा ऑफ एन सेकंड सेमेस्टर में? Function था ये. हाँ, गामा टाइप. इंफिनिटी क्या था? x रेज टू n माइनस वन e रेज टू माइनस एक्स dx था कि नहीं? Yes, sir. है ना? तो सिमिलर यहाँ पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को डिफाइन किया गया है. देखो, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मींस इट इज वन काइंड ऑफ इंटीग्रेशन t1 to t2 k into t, sorry, k of ts into f of t dt, और उसको उन्होंने सिंबॉलिकली नेम दे दिया f of s और f bar s. तो you can say that integral transformation is one kind of integration in this form. Now is it okay? यस सर. ओके, अब ये आगे पढ़ेंगे, इसको डीप में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी नेक्स्ट में, तो डोंट वरी अबाउट इट. बट इतना अंडरस्टैंडिंग रखो कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन मींस वन काइंड ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच इज डिफाइंड बाय t1 to t2 k of ts. जैसे जैसे हम f of t चेंज करते जाएंगे तो नया नया मिल जाएगा, k of ts चेंज करेंगे तो वो उसके नेम चेंज होते जाएंगे. तो यहाँ पे वही करना है. देखो हियर
t denotes the integral transformation of f of t, means जो t हमने लिखा हुआ है it is one kind of symbol of the integral transformation, okay, which is known as input function fs, means ये जो है वो fs उसको बोला जाता है, means आप i of f of t है उसको आप fs भी बोल सकते हो एंड दूसरा क्या बोल सकते हो f bar s, okay. सर एक बार फिर से बता। ओके चलो यहाँ पे कुछ नहीं, आप ये भूल जाओ, चलो मैं 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दो, मैं एक दूसरा ओपन कर देता हूँ तो आपको पता चल जाए। 1 मिनट, ओके। ओके, नाउ इज इट विजिबल? यस सर। ओके, नाउ देखो, I want to define integral transformation, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो इंटीग्रल का क्या आ जाएगा? I आ जाएगा, ओके डन? यस सर, यस सर। अब किसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन करना है? दैट इज माय फंक्शन, इट इज f of t, ओके। यस सर। अब उसको कौन से पॉइंट पे करना है? दैट मीन्स t1 टू t2, इज इट ओके? यस यस सर। सर। अब यहाँ पे फंक्शन लिया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फंक्शन तो आएगा कि नहीं? यस सर। हाँ, यस अब सर। यहाँ पे हम t वेरिएबल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उसको dt के अराउंड इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज द सेकंड वे। यस सर। ओके, यस अब सर। इसको कंट्रोल करने के लिए, मींस उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर डाला गया है, दैट मींस k ऑफ st विच इज द फंक्शन ऑफ t एंड s, ओके, आगे पीछे लिखना है t एंड s, मींस t का फंक्शन एंड s दोनों उसमें होने चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कॉर्नर डाल दिया। सो दिस इज नोन एज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके, अब ये इसको आप कभी कभी कोई बुक में कैपिटल F ऑफ S से भी आपको दिखाई देगा, या फिर कभी कभी आपको F बार S से भी दिखाई देगा। नाउ इज इट क्लियर? सर यहाँ S की वैल्यू सभी बार सेम ही रहेगी या वो कांस्टेंट है? नहीं नहीं, S तो वेरिएबल है। ओके चलो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो अब क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे पहले हमने t से इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, मींस t के ऊपर ऑपरेट किया इसको i को, और हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? s में। डन? यस सर। ओके, तो मींस क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, टाइम को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? s मींस हमारा फ्रीक्वेंसी, ओके डन? यस सर। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। यस But- सर। सर दोनों के हाँ बीच यस, का रिलेशन भी फाइंड नहीं करना पड़ेगा हमें? रिलेशन नहीं, हमको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, जो f ऑफ t है वो हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ f ऑफ t लेंगे और यहाँ पे जो है s में हमारा आंसर आएगा। डन? यस सर। लेकिन दिस इज द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, सो वी डोंट डील विद दिस। हम किसके लिए करेंगे? मैं नाउ आई वांट टू से दैट, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लाप्लास ने ये जो k ऑफ ts है ना, k ऑफ ts जो है वो लाप्लास ने क्या ले लिया? e रेज़ टू माइनस st ले लिया। क्या ले लिया? e रेज़ टू माइनस st। दैट मींस फंक्शन ऑफ s एंड t हुआ कि नहीं? यस सर। यस सर। ये पूरा डेफिनेशन उसने ऐसे लिख दिया, देखो लाप्लास का L फंक्शन f ऑफ t एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे k ऑफ ts की जगह पे e रेज़ टू माइनस st इंटू f ऑफ t इंटू dt, ओके। यस सर। सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके। तो जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें लाप्लास ने कर्नल
कर्नल जो है उसको चेंज कर दिया तो उसको नया ट्रांसफॉर्मेशन मिला एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब यहाँ हाँ अब यहाँ पे देखो e रेज टू माइनस एस टी जो है उसका बिहेवियर कौन से इंटरवल में वैलिड है? T1 to T2. नो, T1 टू T2 तो हमने यहाँ पे रैंडम लिया था, जनरल लिमिट लिया है, लेकिन अब कर्नल जैसे ही फिक्स होता है तब वो लिमिट भी फिक्स हो जाता है. तो e रेज टू माइनस एस टी कब जिंदा रहता है? एस की लिमिट होगी ना सर. हाँ नहीं, टी अभी तो टी की लिखना है ना यहाँ पे. हाँ सर. हाँ जीरो टू इनफाइनाइट. कौन से टी के लिए? वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा T1 और T2. सॉरी सर वो टी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. हाँ तो कौन सा मिलेगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टी की जगह पे माइनस इंफिनिटिव रखा, तो इज इट सुटेबल फॉर दैट? नहीं सर. नो, क्योंकि ई नहीं सर, वो नहीं होगा इंटरवल. माइनस माइनस प्लस होके एस इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी ई रेज टू प्लस इन्फिनिटी वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस. एम आई राइट? Yes, sir. तो चलो, तो नेगेटिव तो वो चला गया. अब जीरो के बारे में सोचो, तो ई रेज टू जीरो हो गया, तो ई रेज टू जीरो इट इज पॉसिबल और नॉट? 1. One possible. यस. तो हमारा तो सर जीरो से इंफिनिटी होगा. यस, वेरी गुड वेरी गुड. तो जीरो टू इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटिव क्यों आया वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप इन्फिनिटिव रखेंगे तो ई रेज टू माइनस एस इंटू इन्फिनिटिव आएगा, एंड वी नो दैट ई रेज टू माइनस इन्फिनिटिव मीन्स क्या हो जाता है? जीरो. Yes, sir. है ना, हमको पता है ना ई रेज टू माइनस Yes, इन्फिनिटी sir. क्या है? जीरो है. ई रेज टू इन्फिनिटिव की नहीं है, लेकिन ई रेज टू माइनस इन्फिनिटिव की है. तो जो ये कर्नल जो है वो ऑलवेज जीरो टू इन्फिनिटिव में वर्क करेगा, इसीलिए उसने जीरो टू इन्फिनिटिव यहाँ पे T1 T2 लगा दिया. सो दिस डेफिनेशन इज नोन एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो सर. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. Understand. ओके. अब देखो वही का वही यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो T denotes the integral transformation, f of t is your input, f of s is your output, k of ts is the kernel, जो मैंने अभी प्रोनाउंस किया था वही. देखो कर्नल ऑफ द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, T1 लेस और इक्वल टू T2 इज द रेंज ऑफ द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इन विच इट वैरीज. ओके. अब देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स आर स्पेसिफाई बाय द चॉइस ऑफ द कर्नल. जिससे हम कर्नल चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली उसका नेम भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे KTS का रोल बहुत ही बड़ा है. यस और नो? Yes, sir. तो yes, sir. So we are going to discuss Laplace transform in which the kernel is, that means e raised to minus st. KTS is equal to e raised to minus st. मैंने वही बोला ना आपको कि जो कर्नल था उसकी वैल्यू उन्होंने ले लिया e raised to minus st, and they say that it is the Laplace transform. Understand? Yes, sir. Yes sir. Okay, now we go for the proper definition of the Laplace transform. So you can see here, ये थोड़ा उसका सब पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ उसके बाद में. देखो, let f of t be a function of t greater equal to 0. This is very meaningful. Okay, t greater equal to 0 means t always non-negative and positive होना चाहिए. Okay, everybody understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The Laplace transform of f of t is defined as Laplace transform of f of t is equal to integration 0 to infinity f of t into e raised to minus st dt. और इसको आपको क्या बोलना है? कैपिटल F of s और कैपिटल F बार s. बट ये कब एग्जिस्ट होगा? अगर ये मीनिंगफुल कब है? जब वो इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होगा तब. दैट मीन्स प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट.
एंड यहाँ पे जो s हमने लिया है ना, सो s इज अ पैरामीटर विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, मीन वो रियल भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. नाउ इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर एक बार रिपीट कर No, दो. sir. Okay. Let f of t be a function of t greater equal to 0. Means f of t एक ऐसा फंक्शन है जिसमें t always greater equal to 0 है. ऐसे टाइप के फंक्शन के लिए ही हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं. अगर t लेस देन 0 है तो वी कैन नॉट फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. फर्स्ट कंडीशन पता चल गया? यस सर. Yes, sir. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी. नाउ ओके? यस सर. Yes, sir. अब ये लाप्लास मिलेगा कब? जब ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होगा तब, यार, है ना? अगर ये इंटीग्रली इनफाइनाइट हो जाता है देन वी कैन नॉट से दैट इट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट. यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे यही लिखा है, देखो, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट. मींस इंटीग्रेशन एग्जिस्ट. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. No doubt. ओके. और यहाँ पे जो एस है वो रियल भी हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. ओके? Yes, sir. Okay, now is there any doubt, any question? No, sir. Means in short ये तो डेफिनेशन है मैथमेटिकली. आपको इतना याद रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी क्या होता है, तो 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू माइनस एस टी डी टी होता है. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. now we talk about the existence of this Laplace transform. तो उसके लिए क्या है कि उसका sufficient condition for the existence means इतना होगा तभी ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होगा, ऐसा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके? Yes, sir. ओके. तो फर्स्ट, इफ एफ ऑफ टी इज पीस वाइज कंटिन्यूस. देखो, अब पीस वाइज कंटिन्यूस मीन्स क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखो यहाँ पे उसी की डेफिनेशन मैंने लिखा था. अ फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल if the interval can be divided into a finite number of sub intervals. means for example मैंने यहाँ पे 1 लिया हुआ है, चलो 0, हम जो हमारे साथ है वही 0 टू इंफिनिटी. ओके. अब मुझे इसको पीस वाइज कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सब इंटरवल में डिवाइड करना पड़ेगा. यस और नो? Yes, sir. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 1 2 3 4 ऐसे स्मॉल स्मॉल इंटरवल में उसको ट्रांसफर कर दिया. अब मुझे पीस वाइज है कि नहीं वो क्या है कैसे पता चलेगा, कि अगर फंक्शन 0 टू 1 में कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक कर लो, 1 टू 2 में कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक कर लो, 2 टू 3 में कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक कर लो, 3 टू 4 में कंटिन्यूस है कि नहीं चेक कर लो. ऐसे जो आपने पार्टीशन किए हैं उसमें अगर आपको कंटिन्यूस मिल जाता है देन यू कैन से दैट इट इज द पीस वाइज कंटिन्यूस. ओके? Okay, sir. ओके. दूसरा, उसका लिमिट क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए. उसका लिमिट अगर आप निकालते हो तो वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, तब जाके तो कंटिन्यूस होगा, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि फाइनाइट लिमिट होना चाहिए, तब जाके यू कैन से दैट पीस वाइज कंटिन्यूस है. नाउ क्लियर पीस वाइज कंटिन्यूस एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट अप टू हियर? No doubt, sir. No doubt, sir. अब देखो, if f of t is piecewise continuous function and it is of the exponential order say alpha, उसका order alpha है, then for all s greater than alpha integration 0 to infinity e raised to minus st f of t dt converges absolutely. means ये तभी एग्जिस्ट होगा जब ये इंटीग्रेशन कन्वर्ज करेगा. ओके?
डन? Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, इसको फंक्शन के पास दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक तो पीस वाइज कंटिन्यूस एंड दूसरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। अगर फंक्शन ये दोनों फॉलो करता है तब जाके ये इंटीग्रेशन जो है 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी कन्वर्जेंस होगा, और कन्वर्जेंस होगा तब जाके हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Everybody, I want to know from all the student, is there any doubt, any question up to here? नो सर। Sir, Yes, yes. No doubt, sir. हाँ सर। सर ये दोनों मतलब पीस वाइज कंटिन्यूअस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर दोनों में से एक भी नहीं होगा तो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके सर। Okay. एक भी फेल हुआ तो नहीं करेगा, दोनों होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे एंड लिखा है। देखो, एक होता तो बीच में और लिखा होता। ओके ओके सर। ओके, नाउ अब ये दोनों चेक कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो, इन अदर वर्ड्स इफ एफ ऑफ टी इज डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइट पॉइंट्स एंड देयर एग्जिस्ट रियल नंबर m and t such that modulus of f of t less than m into e raised to alpha t। तो ये जो डेफिनेशन है ना वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की है, तो मैं यहाँ पे आपको नीचे दूसरी तरीके से समझाता हूँ। यस यस, देखो यहाँ पे क्या है, टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन f of t is of exponential order or not, मीन्स अगर फंक्शन का मुझे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं वो मुझे चेक करना है, तो वी कैन डू बाय टू वेज, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 जो अभी हमने बोला वो डेफिनेशन में मैंने बताया कि फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो मीन्स मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन m into e raised to alpha t, means m is any number and t is the order of that, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कितने का है वो। ओके, नंबर 1 वे वो है। एंड नंबर 2, लिमिट से आप चेक कर सकते हो कि लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस अल्फा t इनटू एफ ऑफ टी अगर आप करते हो वो फाइनाइट मिल जाता है, देन यू कैन से दैट दैट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। अंडरस्टैंड? स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर एक बार फिर से बताओ। फिर से चलो, यहाँ से मैं आपको कनेक्शन देता हूँ। देखो, मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन वेरीफाई करना पड़ेगा? पीस वाइज कंटिन्यूअस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। वेरी गुड। अब पीस वाइज कंटिन्यूअस तो मैंने अभी बता दिया कि उसको आपको पार्टीशन में चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। गॉट इट? यस सर, यस सर। अब सेकंड चीज क्या बचा? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन बचा। यस सर। ओके, अब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। मैंने वही बताया कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर कोई फंक्शन का हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। नंबर 1, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ टी जो है उसको हम इस फॉर्म में लिख पाए, मींस कोई नंबर, फॉर एग्जांपल मेरा m2 ले रहा हूं और यहाँ पे मेरा मिल रहा है -2, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। अंडरस्टैंड? यस सर। Okay, and second one you can check by limit also. So limit t tends to infinity ले लो, e raised to minus alpha t, और जो भी आपको फंक्शन दिया है वो यहाँ पे रिप्लेस करो और उसका लिमिट निकालो। अगर लिमिट फाइनाइट होता है देन इट इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर फाइनाइट नहीं होता है देन इट इज नॉट अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अंडरस्टैंड? यस सर। गॉट इट? सबको पता चल गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए दो कंडीशन हमको देखना है, पीस वाइज कंटिन्यूअस एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। पीस वाइज कंटिन्यूअस में क्या करना है? पार्टीशन में चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए वी हैव टू डिफरेंट क्राइटेरिया, मींस टू टाइप्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। नंबर 1 you can go with the modulus of f of t and number 2 is the limit. Okay, done? यस सर। ओके, चलो अब जो है एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, चेक वेदर फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर और नॉट। तो मेरे पास कितना है? दो ऑप्शन है ना मेरे पास, आई कैन गो विद दिस एंड आई कैन गो विद दिस। इसमें से इजी वे कौन सा रहेगा आप लोगों के लिए?
ऑब्वियसली लिमिट है ना, यस सर। है ना। तो यहाँ पे देखो नंबर 1 फंक्शन है मेरे पास, आई हैव एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी। नाउ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी है तो ये एक फंक्शन है, ओके। अब मुझे ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है कि नहीं वो चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा t टेंड्स टू इंफिनिटी, जो मुझे डेफिनेशन में दिया है, e रेज़ टू माइनस अल्फा टी इनटू एफ ऑफ टी। नाउ व्हाट इज माय एफ ऑफ टी? टी। So I substitute here t. So limit t tends to infinity e raised to minus alpha t into t. अब इंफिनिटी रिप्लेस करके चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पे, e raised to minus infinity मीन्स 0 होगा, यस सर। एंड इंफिनिटी मीन्स क्या आया, t मीन्स इंफिनिटी रखना है ना, तो यार इंफिनिटी, तो इसका फॉर्म हुआ 0 इंटू इंफिनिटी। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, बताओ। इनडिफाइनाइट, हाँ यस यस सर वो गामा वाली मेथड थी ना, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इनडिफाइनाइट फॉर्म हुआ, तो सबसे पहले तो उसको अच्छे फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, 0/0 या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, यस और नो? यस सर। तो t बाय e रेज़ टू अल्फा t उसको लिख सकता हो कि नहीं एवरीबॉडी? यस सर। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होता है तो व्हाट वी कैन डू, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। सो व्हाट इज द Yes, एल sir. हॉस्पिटल रूल? तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, 1 1 e रेज़ टू अल्फा t का अल्फा ई रेस टू अल्फा टी। अल्फा e raised to alpha t, okay। now again check the value of this, तो यहाँ पे इसका वैल्यू चेक करो तो चलो 1, अगर t की जगह पे इंफिनिटी रिप्लेस करूँ तो ऊपर 1 रहेगा, यस, अल्फा तो एज इट इज रहेगा। अब e raised to alpha t that means e raised to infinity, yes or no? यस। So, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि e रेज़ टू इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होता है ना, तो इंफिनिटी। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 0। 0, और 0 मीन्स उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज फाइनाइट, यस सर। है ना, कोई वैल्यू तो मिला ना, ओके। सो Yes, दिस 0। तो यहाँ पे देखो हमारे डेफिनेशन में क्या बोला था हमने कि फंक्शन की लिमिट अगर फाइनाइट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। यस, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पे देखो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अंडरस्टैंड? सर वो Yes, फर्स्ट sir. मेथड भी समझा दो ना। यस यस, हाँ बोलो बोलो। वो फर्स्ट मेथड भी समझा दो ना। फर्स्ट मेथड जो है ना वो यहाँ पे हम करेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल होगा, देखो कैसे मुश्किल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे टी लिखी, चलो तो यहाँ पे ग्रेटर देन, अब मुझे यहाँ पे कुछ लाना है, ई रेज़ टू यहाँ पे कुछ लाना है, तो कैन वी सेट इन दिस वे, टी को और ई रेज़ टू को हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट मेथड यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, अंडरस्टैंड? नहीं सर, सभी के लिए सेकंड मेथड वैलिड होगा। नहीं नहीं, सभी के लिए नहीं, देखो इसके लिए नहीं कर पाए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ई रेज़ टू होता, सॉरी यहाँ पे ई रेज़ टू टी है तो मैं कर सकता था कि नहीं? यस सर। यस सर। तब मैं अल्फा क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा, एंड जो m है वो भी मैं 1 ले लूंगा, यस सर। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी?
यस सर। तो जो फंक्शन के लिए हम फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए फर्स्ट करेंगे, जिसमें ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाता है उसमें सेकंड करेंगे। बट सर सेकंड तो सभी में चलेगा ना? मोस्ट ऑफ दी चलेगा, लेकिन किस में नहीं चलेगा मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट में। ओके डन। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। चलो इसको चेक करो फटाफट, क्या होगा एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अगेन कहां से स्टार्ट करेंगे, लिमिट, इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं इंक, है ना। ओके लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी से स्टार्ट करेंगे। क्या था डेफिनेशन, e रेज़ टू माइनस अल्फा t इनटू एफ ऑफ टी, यस और नो? यस सर। तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एज इट इज, e रेज़ टू माइनस अल्फा t को हमको कुछ नहीं करना है। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी। कितनी है एफ ऑफ टी की वैल्यू? टी स्क्वायर। ओके तो मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर रख दिया। नाउ चेक द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस इंफिनिटी मींस 0 एंड यहाँ पे टी स्क्वायर मींस ये हो जाएगा इंफिनिटी। तो दिस इज द इनडिफाइनाइट फॉर्म। तो सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेंगे। तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, टी स्क्वायर को मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे e रेज़ टू अल्फा t को मैंने नीचे ले लिया। सो दिस इज अवर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। यस सर। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो वी कैन अप्लाई द लाप्लास एल हॉस्पिटल। सो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो व्हाट वी गेट 2t, है ना। एंड यहाँ पे अल्फा e रेज़ टू अल्फा t। नाउ चेक अगेन, चेक दिस वैल्यू। सो यहाँ पे t की जगह पे इंफिनिटी डिवाइड बाय e रेज़ टू इंफिनिटी। सो e रेज़ टू इंफिनिटी मींस इंफिनिटी। सो वी कैन अगेन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। सो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 2t विल 2 एंड टू यस 2 आएगा, टी हट जाएगा और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एंड यहाँ पे e रेज़ टू अल्फा t एज इट इज। Now again substitute the value of t is equal to infinity. So we have 2 by infinity. Yes or no? यस सर। यस सर। 2 by infinity means 0. 0 Then it is 0. so finite. फाइनाइट। Okay. फाइनाइट। Yes. So finite Yes, means sir. बोलेंगे उसको. एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। Yes. Therefore the given function is of exponential order function. Now any doubt? No doubt, sir. Okay. चलो अब e रेज़ टू नो t, डाउट सर। चलो e रेज़ टू टी स्क्वायर में कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड से करेंगे तो मिल जाएगा पक्का। यस सर। ट्राई करो तो चलो। e रेज़ टू टी स्क्वायर किया, चलो तो अब मुझे उसको m इंटू e रेज़ टू अल्फा t में ले जाना है। तो कौन सा मैं अल्फा एंड m लूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा, वो मुझे बताओ। और अल्फा टी लेंगे और m1 लेंगे। नहीं ले सकते ना बेटा t, कोई वैल्यू होना चाहिए। देखो यहाँ पे डेफिनेशन का आ गया, यस 1 मिनट। हाँ यस देखो, देयर एग्जिस्ट नंबर्स, कौन कौन से नंबर, अल्फा एंड m। ओके यस सर। ओके तो वो t नहीं ले सकते। Yes, उसका अलावा कुछ सोचो। ये इसके लिए भी देखो, ये सिंपल नहीं आपको लग रहा है उतना, तो इसके लिए भी लिमिट इजी रहेगा। देखो आप लिमिट से करेंगे ना तो जल्दी मिलेगा। देखते हैं चलो। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस अल्फा t इंटू एफ ऑफ t से हमको स्टार्ट करना है। एवरीबडी यस और नो? यस सर। Yes, sir. लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू माइनस अल्फा t एज इट इज। अब एफ ऑफ t की जगह पे मुझे रखना है e रेज़ टू टी स्क्वायर। ओके अब ये दोनों को मैं क्लब करना चाहूँ तो क्या होगा देखना। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू मुझे क्या मिलेगा, टी स्क्वायर माइनस अल्फा t। यस और नो? यस सर। Yes, sir. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा लिमिट t टेंड्स टू अल्फा e रेज़ टू t कॉमन t माइनस अल्फा। ओके
यस सर। Yes, sir. अब इसमें मैं इंफिनिटिव रिप्लेस करूं तो ऑलवेज व्हाट आई गेट, ई रेस टू जीरो। ई रेस टू इंफिनिटिव। कहाँ से जीरो हुआ बेटा? सर मतलब अभी तो जीरो होगा ना फिर। नहीं होगा। अभी अभी नहीं तो होगा, वैल्यू नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। हाँ, तो ये ऑलवेज क्या रहेगा? इनफाइनाइट। यस, विच इज यस नॉट, सर। उसको मैं नॉट फाइनाइट भी बोल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो ये क्या Yes, sir. होगा? ई रेस टू जो टी स्क्वायर है is not of exponential order function. Yes or no? Yes, sir. यस सर। यस सर। इसीलिए आपको ऐसा कोई m एंड अल्फा आपको नहीं मिलेगा जो ये आपको करके दे। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। तो आप दोनों मेथड से आप देख सकते हो कि किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। इससे हमको सीधा मिल गया तो वी कैन डू दिस वन। एनी डाउट इन दिस एग्जांपल? नो नो सर। सर। अब देखो, मैंने आपको टी एंड टी स्क्वायर के बारे में यहाँ पे समझाया था, तो उसी तरीके से आप टी रेज़ टू एन के लिए ट्राई करेंगे, है ना? ट्राई यस तो कर सर। सकते हैं ना? हाँ, वो तो कोई यस तो नहीं बोलेगा, मुझे पता है ना? लेकिन ट्राई करना है। टी रेज़ टू एन के लिए ट्राई करो, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 के लिए ट्राई करो। ये दोनों ही दोनों मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। एंड तीसरा ये एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू ए टी, तीनों ही तीनों मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। तो थोड़ा देखना, नहीं आता है तो बताना, वी विल डिस्कस। ओके, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी। ओके सर। ओके, हाँ, ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए। डोंट वरी। यस सर। ओके, अब इसमें हम सेकंड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा किसी का क्वेश्चन था। तो देखो ये केस में एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी जो है, उसमें हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे तो हमको कुछ कंक्लूजन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आप लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी वी रेज़ टू माइनस अल्फा टी एफ ऑफ टी मैंने यहाँ पे लिया। अब एफ ऑफ टी की जगह पे मैं यहाँ पे साइन टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो कुछ मिलेगा मुझे इसका लिमिट? नो सर। यहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यस और नो? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस सर। तो जब ऐसी सिचुएशन आता है जिसका लिमिट आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए आपको दूसरी तरीके से सोचना है। दूसरी तरीके से मीन्स हमारा फर्स्ट जो कंडीशन था वो क्या था? मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन इक्वल टू ए इंटू ई रेज़ टू अल्फा टी होना चाहिए। यस और नो? वही था ना? यस सर। देख लो एक बार, भूल गए हो तो देखो ये मॉड्यूल स्ट्रिक्टली है। यस, अकेला सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं। देखो मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ टी लेस देन एम इंटू ई रेज़ टू अल्फा टी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है यस, लेकिन ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा। ओके, तो मुझे कुछ भी करके ऐसे एम एन अल्फा फाइंड करना है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो हम कैसे करेंगे? तो साइन टी इज इक्वल टू हम 1 जानते हैं, दिस इज लेस और इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? यस सर। मॉड्यूलस ऑफ साइन यस सर। यस सर। क्या होता है? -1 to 1 के बीच में होता है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ साइन टी लेस और इक्वल टू 1। अब 1 को मुझे सिर्फ ये फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू ई रेज़ टू 0 टी लिख सकता हो कि नहीं? यस सर। है ना? तो मुझे यस बताओ, सर। यस, मुझे बताओ कि इसमें मेरा अल्फा क्या हुआ एंड एम क्या हुआ, इसके साथ कंपेयर करता हूं तो। सर M1 अल्फा 0। यस, वेरी गुड। तो M1 एंड अल्फा 0, तो मुझे मिला तो सही ना? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ये Yes, sir. इसीलिए उसको हम बोलेंगे इट इज द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन विथ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। सेम एग्जांपल कॉस के लिए अगर आपको पूछा जाए तो क्या करना है? सिर्फ
यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ cos t लेस और इक्वल टू 1, वही का वही यहाँ पे लिख दो 1 into e raised to 0t. So here alpha is equal to 0 and m is equal to 1. Therefore cos t is also exponential order function. Understand? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके अब यहाँ पे देखो सिमिलरली sin 80 cos 80 आर ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन 0. मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया है. सो इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन टुडेज सेशन अप टू हियर? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. No doubt. No doubt. Okay, in next class we start with this topic Laplace transform of elementary function. Okay, हम elementary function की Laplace transform जिसके लिए मिलता है उसके लिए करेंगे. जिसके लिए मिलता है मीन्स हमने अभी चेक किया कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर में कौन कौन से फंक्शन आए थे. t आया था ना, Yes, sir. तो t का लाप्लास फाइंड कर सकते हैं, t स्क्वायर का कर सकते हैं. जो जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर हो रहे हैं एंड पीस वाइज कंटिन्यूअस है वो सभी का हम लाप्लास फाइंड करेंगे. ओके, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Okay. So if you have any doubt, any question, then you can ask me. Any doubt? No doubt, sir. Okay.